So, friends, today we are going to do Anapanasati meditation. This meditation technique was followed by Gautam Buddha, and uh, and he got nirvana by following this meditation. Ana means breathing in, Pana means breathing out, Sati means uh, with the breath. So, when you are with the breath, watching your breath as an outsider, just watch your breath as to whatever is happening in your breath, through your breath, to you, for you. Everything is happening to you, for you. Then you become one with the breath and just be with the breath because this breath is the only thing which you were born with. And this breath is your true companion, which you will stay with throughout your life. So, till you leave your body. And this breath has all the vibrations stored in it. Even when you take a new birth, this breath has the informations as vibrations stored in you, which is a carry forward to your next life. Like we have a carry forward from our previous life, this breath has information to carry forward in your next life also. So we make ourselves very comfortable. We will start 5 minutes with the breath work. No, we will do 10 minutes of the breath work, what we do, and then we will do the Anapanasati meditation. So just make yourself very, very comfortable. बैक स्ट्रेट, चश्मे अगर पहने तो चश्मे उतार दीजिए और हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करके बैठना है. You can sit on the floor or you can sit on the chair, it is okay, but your spine has to be straight. So I will just play the music of the breath so that you can follow, and very gently close your eyes. Just be with your breath. Welcome to 3 rounds of energy breathing. Inhale through your nose and exhale through your mouth. Sit down or lay down and prepare for breathing. Let's begin. And breathe in, out, in, out, in, out, and follow the rhythm. Take a deep breath in and exhale fully. Hold your breath. Prepare for round 2. And breathe in, out, in, out, in, out, and follow the rhythm.
Take a deep breath in and hold. And breathe out. Last round. And breathe in, out, in, out, in, out, and follow the rhythm. Take a deep breath in and hold. And breathe out. Let's begin. And breathe in, out, in, out, in, out, and follow the rhythm. Take a deep breath in and exhale fully. Hold your breath. Prepare for round 2. And breathe in, out, in, out, in, out, and follow the rhythm. Take a deep breath in and hold. And breathe out. Last round. And breathe in, out, in, out, in, out, and follow the rhythm.
Take a deep breath in and hold. And breathe out. And just relax. Relax yourself completely and be with your breath. Make sure your spine is straight, back straight, and head straight. And just be with your breath. बाहर की दुनिया से सारा जो ध्यान है बाहर की दुनिया से हटाना है और अंदर की दुनिया में ले जाना है. Slowly and slowly. Take your full attention inwards. Full awareness inside. Be aware of whatever is happening inside. कोई भी हलचल जो अंदर हो रही है उसे गौर से देखिए. Just be aware. You do not need to change it. Just be aware. Just be aware as to whatever is happening to you, whatever is happening. You don't need to change it. Just be aware. सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है? Just be aware. Notice it. And with every breath, your mind and body is becoming still and silent.
आपका शरीर एकदम शांत हो रहा है। With every breath, you feel your feet breathing in healing energies and breathing out all the toxins. If any thoughts come, let it pass by like a passing cloud. Don't interact with your thought. Just be with your breath. Today is the time to understand your breath. Such a beautiful breath you have. Today is the time to be with your breath. We all have. You have the power to become Buddha. Buddha was also like you and me. Today is the time to become Buddha. Tell yourself, I am ready. I am ready to become the Buddha. And just stay connected with your own breath. Meditation is the life force we have, the prana we have. आइए ध्यान इस जीवन की संजीवनी है। आइए हम ध्यान रूपी अमृत का पान करें, सांसों के साथ एक हो जाएं। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई विचार भी नहीं। अपनी चेतना को अपने सांसों के साथ जोड़ना है। Just be aware of your breath. हर आती हुई और जाती हुई सांसों को एक दरवान के जैसे देखते रहना है। मानो एक भी सांस छूट ना जाए। Be a watch guard of your own breath, so that no single breath goes unnoticed.
Notice how, as you're watching your breath, the breath has become slow. आपकी सांसों की गति कम हो गई है. आज, today is the time to get rid of all your past karmic baggage. विचारों की गुलामी से मुक्ति पाने का. सांसों के साथ बने रहिए. Breath is your true friend. From the time you were born to the time when we will leave our own body. Today is the time to become just nobody. You are nobody. You are in no time. There is no space. सिर्फ और सिर्फ नथिंगनेस, खालीपन, शून्यता. अपनी इस शून्यता के साथ जुड़ जाइए. स्वयं को इस शून्यता में खो जाने दीजिए. Just be lost into this nothingness. You are the unlimited self. You are the God within. There is nothing outside. Everything is inside. Connect to your inner being.
Just be with your breath. Just watch your breath and feel unlimited. You are the unlimited self. Nothing to do, nowhere to go, just you and your breath. Be connected to your own breath. Noticing the silent spaces between your breath. Diving deep inside. Let go of all the past stressful thoughts. A journey within to know your own self. Dive deep inside. The only purpose is to know your own self. There is no other purpose of this life. Notice how the breath has changed when the mind has become empty. Just be aware as a spectator. Just be. Just be. Nothing to do. Just be. And surrender to the breath. Feel the complete stillness inside you. Param Shanti. Andar aur bahar. Be with this stillness.
Surrender to your breath. Let the breath do its job. Now is the time to be you yourself, whoever you are. Just be your natural self. Feel the feelings. In this state of stillness, whatever you're experiencing, whatever you're feeling, that is true you. Feel the Anand inside you, the bliss inside you. Feel it, feel it. And stay with that feeling. Align with yourself completely. Your inner stillness is spreading all around.
अपनी सांसों में डूब जाइए। इस समंदर में डुबकी लगाना है। मैं और मेरी सांसें अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को फील करिए। फील योर बॉडी वाइब्रेशंस। How it has changed just by watching your breath. Just go back to your own breath. You and your breath, no one else.
Keep watching your breath, the in breath and the out breath. इस समय सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी सांसें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और कुछ भी नहीं। अपने आप को पूरे गहरे उतारना है। Dive deep into your breath, your in breath and your out breath. Just you and your breath. Feel the divinity inside you. Feel that divine consciousness, that pure consciousness. Connect to it.
Feel the stillness. Feel the bliss inside you. Feel the Anand inside you. All Anand is inside you. Feel it. The breath reaches you to your Param Anand. You are lost in your own breath. इन सांसों के साथ डूब जाना है. इन सांसों में डूब जाना है. This is my own breath. My best friend, my guide, my guru. The God within you.
You are nothing. You are in no body, in no time, in no space. Just nothing, शून्य. आप कुछ भी नहीं हैं. Experience and feel this stillness and silence inside you. Be lost in your own self with your own breath. Feel the joy, feel the bliss inside you. You are connected to your own divinity. आप अपने अंदर के भगवान के साथ जुड़े हुए हैं. शुद्ध चेतना और कुछ भी नहीं. You are just pure consciousness. One more minute. Feel the Anand inside you.
very, very slowly. And 5, 4, 3, 2, 1. Very, very gradually come back to the present moment. Take your own time, there is no rush. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. मैं सबको वीडियो ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास नाउ. शोभा जी, बिंदु जी. Fantastic. Yes, Nirmal ji, you want to share? Yeah, Yes, please yes. share. Fantastic. It was very nice. Very nice. I enjoyed. I don't know how much benefit you are getting from the public. You are giving so much to without taking any pie or anything.
Really great. Really great. Hats off to you. You made everyone happy. You are motivating everyone. What a kind-hearted, really. I would appreciate it. Thank you very much. थैंक यू। मैम हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे आंटी ने बोला सेम मेरे भाव हैं आपके लिए। मतलब मुझे लग रहा है कि थैंक गॉड मैंने क्लासेस ज्वाइन की, मेरे अंदर भी कुछ वैसा आपके जैसा आया थोड़ा, और मैं इसी को आगे लेके जाऊं, आपके जैसे बनूं। जैसे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया उससे +1 आपने और ऐड किया उसमें। तो मैम बस थोड़े से प्रश्न हो रहे हैं ब्रेथ को लेके। जब मैं मतलब मेडिटेट करती हूँ तभी प्रश्न आते हैं मुझे। तो प्रश्न एक तो पहला ये था कि जो आपने पेट फुला के बोला है ब्रेथ को, हम चेस्ट, कुछ लोग मतलब चेस्ट तो नहीं फूलनी चाहिए ना ऐसे नहीं, चीज। अगर आपकी ब्रीदिंग चेस्ट तक रहेगी तो आपको चेस्ट में फील होगा, आपकी ब्रीदिंग पेट तक जाएगी तो पेट फील होगा। तो अच्छा बेस्ट इज इफ यू कैन फील योर स्टमक एंड देन द चेस्ट। एवरीथिंग हमारा जब सांस तो चेस्ट के थ्रू ही जाता है ना पेट में, तो दिस इज ऑल कनेक्टेड एक्चुअली। ओके बट मैम पेट सेकंड। फूलना, मैंने आप जब ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपको खाली, आप अगर स्टमक पे अपना हाथ रखेंगे तो आपका पेट ऐसा फील होना चाहिए। ब्रीद इन किया तो पेट बाहर गया, ब्रीद आउट किया तो पेट अंदर गया, चेस्ट तो अपने आप आ जाता है साथ में। ओके मैम। मैम सेकंड ये था कि ब्रेथ जो एक मेडिटेशन में आपने मुझे मतलब बताया था कि नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं हेड पे तब ब्रीथ, तब होल्ड करके रखना है ऐसा। तो मैम जैसे आज जो मेडिटेशन कराया था आना जाना सती, तो उसमें उस तरीके से लेना होता है या सिंपल लेना होता नहीं, है? सिंपल, यू आर जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, नथिंग एल्स। अच्छा, आना जाना में चक्रास में देखने। नहीं, खाली आपकी सांसों को देखना है, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। हमारी जो सांस हम जो ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसके बीच में एक गैप है, मैंने पहले भी बताया था। उसके बीच में एक छोटा सा गैप है। जैसे जैसे आप अपनी ब्रेथ के साथ जुड़े रहेंगे ना, ये गैप बड़ा होते जाएगा। इन दिस गैप ओनली दैट आनंद इज देयर। सो वो अपने आप होगा। मैंने, जब आप सांस के साथ जितना ज्यादा जुड़ेंगे ना, वो गैप बढ़ते जाएगा। आप 1 घंटे मेडिटेशन करेंगे, आपको लगेगा आपने 10 मिनट ही किया, क्योंकि वो गैप, जो ब्रेथ के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वो गैप बढ़ेगा, आपको, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर एंड मोर ऑफ दैट ब्लिस, मोर एंड मोर ऑफ दैट ब्लिस, बिकॉज आप वो गैप के साथ जुड़ गए। गैप तो में वो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। You can't consciously, just don't do it. You just, when you're watching the breath, that just happens. It is like a byproduct. ओके तो मैम वो जो चक्रास वाला है ऊपर तक, वो मतलब वो अलग से करना होता है? वो अलग से करना होगा आपको। आप उसमें खाली कोई भी म्यूजिक लगा के, या कुछ भी म्यूजिक भी नहीं लगाए, अगर अपना ध्यान हर चक्र पे लेके जाएं, ब्रीद इन करें और हर चक्र पे ध्यान लेके जाएं, और ब्रीद आउट यहाँ से ऊपर से करना है। उसका पर्पस अलग है और ये अलग है हाँ। वैसे ना मैम। मैम एक और छोटा सा क्वेश्चन फूड के ऊपर है। मैम बस पूछना था कि जैसे आपने जो डाइट बताई थी ना, तो मैं थोड़ा सा कल चेंज किया था डाइट में। शाम को आपने मुझे सूप सूप और वो बोला था ना, सब्जियां खाओ स्टीम वगैरह करके, हम्म। तो इतना वो सफिशिएंट? खाओ या चिल्ला खाओ, कोई भी दाल का चिल्ला, उसमें खूब सारी सब्जियां घस के, या बीट रूट का टिकिया बना लीजिए, आलू का टिकिया, शकरकंदी का टिकिया, उसमें सब्जियां डाल लीजिए, उसकी एक टिकिया बना लीजिए तवे पे सेक के। बेसिकली अनाज, हम लोग जब फुल ग्रोन अप एडल्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद अनाज बार बार खाने की जरूरत नहीं है। एक बार अनाज खाने से हो जाता है, पर हम ह्यूमन ब्रेन कंडीशनिंग के कारण बार बार अनाज खाते हैं। हमको लगता है कि हम अगर अनाज नहीं खाए तो हमारा पेट नहीं भरेगा, बट एक्चुअली वी आर ईटिंग मोर आउट ऑफ ग्रीड, नॉट आउट ऑफ नीड। तो जब आप सूप और सैलेड, पर आपका क्या होगा ना कि हम थोड़ा सा सैलेड खा के पेट नहीं भरेगा, हमारा उसका क्वांटिटी बहुत, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा, एक एप्पल खा लिया हम सोचते हैं फल खा लिए, थोड़ा सा एक टमाटर एक गाजर खा लिया हम सोचते हैं हम सैलेड खा लिए। नो, दैट क्वांटिटी हैज टू बी रियली बिग, देन मैम आपका पेट भरेगा। मैम जैसे कल मैं बता देती हूँ, कल मैंने ब्रोकली लिया था एक, और उसको स्टीम कर दिया था, और एक हाँ कैबेज लिया था उसको, हाँ हाफ कैबेज। तो हाँ, उतना खाया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं काफी देर से खा रही हूँ, तो मैंने बस इतना ही खाया। ठीक है। तो इतना ही है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन और है कि मैम वो जो आप बता रहे थे अटैचमेंट डिटैचमेंट वगैरह, तो ऐसे मैम जैसे न्यूटन सर हैं जो आप सबको गाइड करते हैं और इतना उनका स्प्रेड है, तो इतना सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैम वो बस मतलब
कोई भी अटैचमेंट नहीं रखते हैं एंड दे जस्ट थिंक दैट इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। यस यस, जैसे मेरे साथ भी ऐसा होने लगा है। जैसे आई हैव 2 चिल्ड्रन, बट ऑफ कोर्स आई लव देम, आई डू देम, बट मेरा फुल टाइम ध्यान यही रहता है कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस करना ही करना है। इट्स नॉट दैट आई हैव टू गेट स्टक टू माय चिल्ड्रन। जैसे मेरी डॉटर का भी फोन आएगा, तो मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ इस तरह, मुझे लगता है उसने मुझे डिस्टर्ब किया है। मेरा एक काम है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज है, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम उनके लिए वरिड भी है, सब कुछ है। बट इट्स नॉट दैट आई एम फुल टाइम जस्ट थिंकिंग अबाउट देम। आई हैव अ बिगर पिक्चर, लाइक यू आर माई बिगर पिक्चर। दिस होल यूनिवर्स इज माई बिगर पिक्चर। इट्स जस्ट हैपनिंग, इट्स नॉट मी डूइंग इट, इट इज जस्ट हैपनिंग। मेरा थॉट अपने आप ही वैसा चल रहा है कि मुझे लोगों के लिए करना है। मेरा शायद जन्म इसीलिए हुआ है। आई सी दैट आई हैव टू डू इट, to reach out not to thousands. My thought process is I have to reach out to millions of people. And that is why I told yesterday, मैंने बोला कि किसी को भी अगर मेरे मूवमेंट के साथ जुड़ना है कोई भी तरीके से, जैसे मंजू जी ने बोला मुझे जुड़ना है मेरे साथ, शी सेड आई डोंट नो मैं कैसे आपके साथ जुड़ सकती हूँ। तो मैं बोली आपकी क्या स्पेशलिटी है? शी सेड कि मुझे लगता है कि मेरा पीआरओ बहुत अच्छा है, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है। तो ऑफ कोर्स वी नीड पब्लिक रिलेशन इन दिस काइंड ऑफ वर्क, जहां हम लोगों के पास जुड़ सकें। तो इसी तरह से आप लोगों के पास भी अगर कोई भी पर्टिकुलर स्किल है या कोई भी तरीके से तन मन धन, इवन मनी, एनी काइंड ऑफ थिंग, जैसे डॉक्टर न्यूटन को भी मैंने बहुत लाखों लाखों रुपए मैंने डोनेट किए हैं। तो दैट्स नॉट दैट आई हैव डन इट, इट इज ही इज डूइंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। जैसे वो हमेशा बोलते थे कि मंदिर में जाके कोई अगर डोनेट करता है तो उससे आपकी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट नहीं होती है, आपने खाली डोनेशन दिया। पर अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में अगर आप डोनेशन करते हैं, तो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट इवॉल्वमेंट वेयर यू आर हेल्पिंग दैट ह्यूमैनिटी टू इवॉल्व। सो मुझे उस चीज से बहुत कनेक्ट फील होता था, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू डू सम काइंड ऑफ चैरिटी, सम काइंड ऑफ डोनेशन। तो मैं वहां जब डोनेट करती थी तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। मैंने वहां कमरा बनवाया, सब कुछ किया। तो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, दैट नेचुरल फीलिंग हैपेंड। आई स्टार्टेड फीलिंग कि वो यूनिवर्सिटी तो मेरी है, मैं जब चाहूँ वहां पे मैं कोई भी चीज कर सकती हूँ। मैं जाती हूँ, मैं वहां सेवा भी देती हूँ, डोनेशन भी देती हूँ। तो उनके कोई कर्मचारी ने पूछा आप यहाँ सेवा भी देते हैं और फिर आप डोनेशन भी देते हैं? बोले वो मेरा अंदर से फीलिंग आता है, मैं इसलिए करती हूँ। कोई भी आपको कोई चीज के लिए बोल नहीं सकता। दिस इज योर इनर फीलिंग, इनर गाइडेंस विच टेल्स यू। मंजू जी ने हम बोला मुझे आपके साथ जुड़ना है, ऑफ कोर्स इट इज रियली नाइस। कोई भी मेरे साथ, ऑल ऑफ यू आर वेरी इनवाइटेड। आप लोगों ने मुझे इतने दिन तक देखा समझा, तो यू अंडरस्टैंड माई बॉडी वाइब्रेशन, यू अंडरस्टैंड हु एम आई, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। कोई भी तरीके से जुड़ना, मेरा एक ही है कि मैं, क्योंकि मेरे पास फूड का भी नॉलेज है, तो थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा होता है लोगों को समझाने, बिकॉज वी आर नॉट द फिजिकल बॉडी और द मेंटल बॉडी, वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बॉडी। तो फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैं ध्यान साधना बहुत सालों से कर रही थी, there came a time when the body vibrations completely changed and my body started rejecting certain food which is not designed for the humans. तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली ह्यूमंस के लिए खाना नहीं। जब मेरी बॉडी ने रिजेक्ट किया, मैंने जब पिज्जा खाया, जब पिज्जा खा के, चीज खा के मेरी बॉडी ने, जीभ ने बोला ना ये सही नहीं। मैंने नहीं कहीं पढ़ा नहीं, उसको मैंने समझा, मेरी शरीर ने समझा। जब मेरे शरीर ने समझा फिर मैंने उसकी पढ़ाई की। अरे ये तो गलत है मैं जो करती आई हूँ, इसकी क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू स्टडी मोर। तब मैंने अपने आगे ज्यादा पढ़ा, और लोगों, इंडिया में बहुत सारे गुरु हैं, उनके साथ मैं संपर्क में आई, उनके साथ समझा, फिर विलायत भी गई, वहां पर भी पढ़ा, तो समझा ये सृष्टि की है। इट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट इज द होल यूनिवर्स। द ह्यूमन बीइंग इज द सेम वेदर इट इज इंडिया और अमेरिका, इट इज सेम एवरीवेयर, देयर इज नो डिफरेंस। ये हम मन और बुद्धि से उसको डिफरेंट बना रखे, बट देयर इमोशंस आल्सो सेम, देयर बॉडी इज सेम, द फूड इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। सो कैसे आया है? ध्यान साधना से। मैं जब अपने आप से जुड़ी, सब कुछ अपने आप रेड कारपेट के जैसे सामने आते गया, मैं बस चलती गई और कुछ नहीं। मैंने खाली आई जस्ट वॉक द पार्ट, आई सरेंडर्ड माई सेल्फ कंप्लीटली। यू हैव टू सरेंडर। आप दिमाग से अगर सोचते रहेंगे तो नहीं, मैम सरेंडर। पर जैसे डोनेशन करना है या जो भी करना है इन चीजों से जुड़, तो मैम ये एक अटैचमेंट क्रिएट नहीं करेगा कि नहीं, चीजों से? आपने जब डोनेशन किया तो फिर वहां से एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिएगा। हम्म। अगर आपने एक्सपेक्टेशन की तो अटैचमेंट है। अटैचमेंट है
जी, जी, समझ गई मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा जुड़ी रहूँगी आपके साथ। थैंक यू सो मच। आप लोग 30 सेकेंड का या 1 मिनट का एक वीडियो बनाइए। आप लोगों ने जो फील किया, इतने दिन तक जुड़े रहे, आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, फील किया, आप जैसा फील किया, बिकॉज फीलिंग इज द वाइब्रेशन विच ऑलवेज स्टेज विथ यू, नेक्स्ट जन्म तक भी जाएगी। आप जो यहाँ फील किए, बहुत अपने आप को काम करके, आप जो इन दिनों में अपने आप को महसूस किए, जो फील किए, जो वाइब्रेशनल शिफ्ट हुआ आपके अंदर, वो आप 30 सेकेंड का वीडियो बना के मुझे भेजिए। सामने में फोन रखिए और उसमें बोलिए, एंड देन यू सेंड दैट रिकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू सो मच। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा या कोई क्वेश्चन है तो आई एम देयर टू आंसर। यस मैम। हाँ बोलिए। हाँ, मैम मेडिटेशन आज का तो मुझे काफी थोड़ा टाइम लगा था कनेक्ट होने में, बट मुझे लगा मैं नहीं हो पाऊंगी, बट ऑल ऑफ सडन मैं कब वो एकदम डीप चली गई मुझे पता ही नहीं चला। एंड यस, काफी लाइक एवरी डे it's a different experience, but very peaceful and very it's great. और मैम मैं तो ना, मुझे गर्भ संस्कार में भी ना हमें सिखाया जाता है कि आप गर्भ संवाद करो बेबी से टू क्रिएट दैट बॉन्ड। तो आई डू दैट, और उसमें मैं आपका भी मेंशन करती हूँ कि सो दैट आई मीन ऑफ कोर्स आई एम कनेक्टेड विथ यू, तो इवन माय चाइल्ड आल्सो गेट्स कनेक्टेड। होता है ये फर्क, करेक्ट। या तो मतलब कि नाउ तो यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय जर्नी। थैंक यू। So, yes, so I will also like to be part of your journey. And yeah, definitely कि हम आप एटलीस्ट ये मेरा जो फेज खत्म हो उसमें आप एक और बार ऐसा सेशन ले। जरूर, आई कम बैक, डेफिनेटली आई कम बैक। अभी जो मैं सेंटर बना रही हूँ, थोड़ा उसमें व्यस्त हूँ, मुझे वहाँ समय देना पड़ता है। बहुत तरह का काम हो रहा है वहाँ पे। मैं चाहती हूँ 1 महीने के अंदर उसको चालू करूँ, सो दैट मेरा ये सोच है कि वो सेंटर पे, ये भी जब मैं फुली रेडी हुई, सेंटर कैसे आई, सेंटर मेरा बहुत दिन से था, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि ये जगह थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा यहाँ बनाना है। क्या होता है जब आप वाइब्रेशनली रेडी है ना कोई चीज को रिसीव करने के लिए और कोई चीज को देने के लिए, तो यूनिवर्स बोलता है नाउ यू आर रेडी, नाउ जस्ट गिव इट। मैं सोच के साथ बना रही हूँ कि उस सेंटर पे कोई भी जब पाँव रखे, पाँव रखते ही उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरी हीलिंग चालू हो गई। बस मैं यहाँ आई और मैं आई बी हील्ड, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, ऑल काइंड्स ऑफ हीलिंग विल जस्ट हैपन। उस थॉट के साथ वो जगह को मैं क्रिएट कर रही हूँ। इट्स अ वेरी बिग स्पेस, इट्स लाइक अबाउट 4000 स्क्वायर फीट है। तो मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ माई क्लिनिक है, मेरी वर्कशॉप है, मेरी सब कुछ है, सब कुछ मैं वहीं से करूंगी जो मैं अभी तक अपने घर से करते आई थी। बट एक घर होता है, दैट कैन नेवर बिकम योर what you say a professional space or something, and that is my space for my husband, my family also. So that space जो अब मुझे नया space मिला है, वहां से मुझे बहुत बड़ा काम करना है। That space is 4000 square feet, but मुझे जो काम करना है, that has to reach to millions of people. I'm sure in time to come that space will become bigger and bigger, because Will you invite? मेरी सोच जो है वो बहुत, I need to reach to millions of people. That is all. Where it is? Where it is? It is in Calcutta, in Chaurangi. आप कलकत्ते में रहते हो? Right. हाँ, तो चौरंगी में इंडियन म्यूजियम के एकदम पीछे में है, बस वहीं पे है। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, जब खुलेगा तो आई डेफिनेटली इनवाइट ऑल ऑफ यू, प्लीज कम एंड विजिट एंड बी अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। Yeah, sure, ma'am. And ma'am, one more thing, अगर आप सैलड के कोई क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं तो I यस, would आई like विल डेफिनेटली, आई विल कंडक्ट, एंड आपके पास, सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगी। आप लोग सब लोग मुझे इंडिविजुअली अगर व्हाट्सएप पे हेलो कर देंगे तो आई विल ऐड यू ऑन माय ब्रॉडकास्ट लिस्ट। जो कोई भी मैसेज अगर जाएगा तो आप लोग को भी रीच करेगा। Yeah, I'm very thankful you. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मैम, मच। हाँ ऑल द वेरी बेस्ट मैम। मैम, आज का मेडिटेशन सबसे अच्छा था। I mean, I could feel vibration all over my body. Oh, wonderful, wonderful, excellent, wonderful.
मैम जैसे इसकी जैसे रिकॉर्डिंग आप जैसे जैसे आप अपने आप से जुड़ते जाएंगे ना, आप अपने आप से जैसे जैसे जितना ज्यादा जुड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको ज्यादा फील होगा। मैम इट इज, इसकी रिकॉर्डिंग आज शेयर हो पाएगी क्या? हाँ मैं चेष्टा करूंगी कि आज ही इसको यूट्यूब पे डाल दूं, सो दैट बिकॉज मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है डालने का, मुझे यूट्यूब पे डालना पड़ेगा। सो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी और आप लोग सब देख सकेंगे उसको। WhatsApp or And WhatsApp. ma'am, if you could share the link of that YouTube video. यस आई विल शेयर इट। You cannot send it in WhatsApp, ma'am. सॉरी, हाँ बोल रहे हैं आप कुछ निर्मला जी? गुड मॉर्निंग मैम। That slide, can you send it in WhatsApp also? यस आई विल सेंड इट इन व्हाट्सएप। Thank you, thank you, thank you. I would like to say thank you, Auntie, so much. थैंक यू। मुझे मेरे लिए ऐसा है कि जैसे जैसे मैं आपसे जुड़ती जा रही हूँ, वैसे वैसे मैं खुद से जुड़ती जा रही हूँ। और मेरे लिए आप मेरे गुरु हैं, मेरे इंस्पिरेशन है। मतलब I admire you so much. I don't know what is the connect. And मेरे को मतलब आप जो भी चीजें बोलते हो या मैं सुनती थी स्पिरिचुअलिटी में कि ऐसे वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं, चक्रास होते हैं, अब मेरे को वो चीजें समझ में आने लगी हैं। और मतलब अब सच में ध्यान होने लगा है। पहले मैं करने की कोशिश करती थी कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन अब वो होने लगा है। जैसे और भी मास्टर से जुड़ते थे, वो बोलते थे कि मेडिटेशन कोई करने की चीज नहीं है, ये ये एक होने अवस्था, की चीज है। ये अवस्था है। और तो अब जब ये होने लगा है तो मेरे को खुद पे भी विश्वास होने लगा है कि आई कैन रियली क्रिएट माई ओन रियलिटी। लाइफ के अंदर भी ऐसा नहीं होता है कि बस चीजें हो रही हैं, पर हमें डेलिबरेटली चॉइस करनी पड़ती है। आज अगर हम चूज कर रहे हैं कि हम मेडिटेशन करेंगे, हम ये रास्ता चूज करेंगे स्पिरिचुअलिटी का, तो यूनिवर्स डेफिनेटली हमारी हेल्प करेगा ही करेगा। यस, सबसे तो स्टार्ट्स विद द थॉट। आपने सच जैसा में सोचा वैसा आपको मिलेगा। हम्म, थैंक यू सरीन तो सो मच। ये थैंक सरीन मेरे साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। शी हैज टेकन, मैं जब पेशेंट्स को कोई देखती हूँ तो ये मेरे से सीख रही है, मेरे पेशेंट्स को ये हैंडल भी करती है। शी इज टेकन अ लॉट ऑफ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। मैं सब पेशेंट्स को अकेले नहीं देख पाती हूँ, तो जब मैंने एक बार देख लिया तो ये मेरे साथ एजुकेशन कर करके शी इज ट्राइंग टू हैंडल माय पेशेंट्स आल्सो। सो थैंक यू सरीन फॉर बीइंग विद मी। मैम सरीन कोलकाता में रहते हैं? थैंक यू। कोलकाता, यस करेक्ट। यस, कोलकाता में ही रहती हूँ मैं भी। और थैंक यू आंटी सो मच। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं भी उड़ने वाली हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं अब अपने आप के लिए, जो पहले नहीं आते थे। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में थी। तो मतलब वो मैजिक जो होता है ना यूनिवर्स का, वो हो रहा है। थैंक यू सो मच थैंक यू, फॉर थैंक यू सर। मेकिंग मी बिलीव इन माई सेल्फ। यस, थैंक यू। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। सविता, नहीं सविता जी बोल रहे हैं कुछ। सविता जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई आपसे, और जितना मेरे को हिंदी में समझ में आया मैं बहुत कुछ पाई आपसे, और कुछ इंग्लिश में ऊपर से चला जाता है। मैं पूछती रहती हूँ अपने हस्बैंड से, रंजू से। बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत। थोड़ा आप वो लीवर के बारे में बता रहे थे ना, तो शायद यहाँ पे 2 लाइन में कुछ बताइए। और वैसे मैं आपको आपसे आपको लिवर के लिए भी आपको मैंने जो डाइट बताई है आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी। आप अगर मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप सुबह से शाम तक क्या खाते हैं, तो मैं आपको अभी बता दूंगी आपको क्या चेंज करना है। सुबह से शाम तो मैम ये जैसे चाय है, एक रोटी के बिना जैसे शुरू से आदत पड़ी हुई है। गेहूं की रोटी, सुबह जौ की रोटी और चाय लेते हैं। जौ की रोटी नहीं जी, गेहूं की परांठे गेहूं की वैसे। रोटी, हाँ पराठे और हाँ चाय। हाँ जी, ऐसे लेते हैं। पोहा भी खा लेते हैं, हाँ। और ये रवि का उपमा है, सूजी है, ऐसे खा लेते हैं सुबह नाश्ते में। और लंच करते हैं नहीं, लंच में लेते हैं फ्रूट, और फिर शाम की चाय, और रात को रोटी खिचड़ी दलिया ऐसे ले लेते हैं। ये राइट है जी। तो आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। आप जो सुबह है ना,
वो आपको सुबह फल खाना है इंस्टेड ऑफ सुबह रोटी और वो, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, तो हमारे बॉडी को बहुत सारा खाना को भोजन को, मैंने जो अनाज है ना उसको बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर हम अपने पेट को जो इतने रात भर हमने रेस्ट दिया है उसको हम फल से शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे पेट को अच्छा लगता है उसको थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करना। उसके बाद आप दोपहर में अनाज खाइए, पर अनाज के पहले भी आपको एक बड़ा सारा बोल, मैंने 400 ग्राम, कम से कम 400 ग्राम मापना है आपको, 4 से 500 ग्राम आपको सैलेड खाना है, जो अभी टमाटर, गाजर, खीरा, मूली, ककड़ी, चुकंदर, जो भी चीज आ रहा है ना अभी आपको जो अच्छा लगे, आपको 500, 400, 500 ग्राम आपको वो खाना। उसके बाद आपको जो रोटी सब्जी जो आपको खानी है वो आपको खाइए। शाम को एक प्याला सूप लीजिए, जो भी तरह का आप सूप बनाइए, सूप बनाने के बाद आपको जो भी आपको खाने का मन है वो खाइए। आप इतना सा चेंज करेंगे ना, और आपको दूध की चाय नहीं लेनी है, मैंने आपको समझाया था दूध की चाय, वो आपको चाय उस तरह की पीनी है, दूध आप एकदम छोड़ दीजिए। आप इतना सा भी चेंज करेंगे, 1 हफ्ता ये करिए, फिर आप मुझे फोन करिएगा, आप एक इतने में ही आपको चेंज फील होने लगेगा। ठीक है मैम, बहुत ज्यादा धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। बहुत ज्यादा, मैं आपसे काफी इम्प्रेस भी हुई हूँ, और बहुत अच्छे भी लगते हो आप बोलते हुए। थैंक यू। बहुत ज्यादा थैंक यू मैम। नमस्कार। हेलो मैम, गुड हेलो। मॉर्निंग। हाँ गुड गुरशेन। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, ये जो हमारे 21 दिन बीते हैं, इन 21 दिनों में बहुत बहुत कुछ सीखा है, और उसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और चाहेंगे कि आगे भी आपसे जुड़े रहें हम। और जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब किसी भी तरीके से, वो मैं आपसे पर्सनल में बात करूंगी मैम। दूसरी बात है, आज इतनी खुशी हो रही है कि आप डॉक्टर न्यूटन के स्टूडेंट हैं, उनसे सीख के और कुछ अपने एफर्ट से आपने जो आज एक सुनीता केडिया हमारे सामने हैं, रियली अमेजिंग मैम। और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर डॉक्टर न्यूटन हमारे पास है तो हमारे पास सुनीता केडिया भी है। और वी आर सो ब्लेस्ड। हम भी एक दिन ऐसे जरूर आपका हाथ पकड़ के, डॉक्टर न्यूटन का हाथ पकड़ के, हम भी ऐसी नॉलेज में आएंगे एक दिन। डेफिनेटली, यस। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहूंगी भगवान आपकी हर ख्वाहिश इस ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए जो आप कर रहे हैं वो जरूर पूरी करे। हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं, और आपको हमसे जो भी कोई मदद की जरूरत पड़े या आपको लगे तो आप प्लीज प्लीज एकदम फ्रीली हम मेरे से तो बिल्कुल बात कीजिए। मैं एम सो ब्लेस्ड अगर आप मेरे से कुछ बात करते हैं इस मामले में। जरूर थैंक यू जरूर। सो थैंक यू मच सो मच। मैम। माय फैमिली इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर, यू नो। यस यस, और सभी पार्टिसिपेंट, सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो 21 दिन सब हम एक साथ जुड़े रहे। संध्या जी, सबकी। ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले समय के लिए। भगवान खुशियों से आपका घर भरे, और जो चाहे भगवान आपको वही दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो मच Such a मैम। beautiful energy in this Thank you. whole space, you know. Very beautiful. Yes. Thank you, Guru Sharan ji, and I hope you are feeling well now. यस यस, आई एम बेटर, बट थोड़ा अभी बेड रेस्ट पे हूँ। मेरे को पता चल गया, बॉडी को मैंने दुखी किया है, बॉडी ने मेरे को किया है अभी। अभी थोड़ा मैं ये उससे मेडिटेशन, यस हाँ, यस। सुनीता मैम के मेडिटेशन सेशन में ना इतना तो पता चला है कि पेट और दिमाग को ज्यादा थोड़ा ध्यान रखो। हाँ नहीं, मैंने अभी उसको, अपने शरीर को एंटायर इतना बॉडी। प्यार, इतना ब्लेस्ड किया है, इतना थैंक यू बोला है अपनी बॉडी को, इतना थैंक यू कि चलो कोई नहीं। बड़ी कुछ बातें मैं बोल रही हूँ ना, मैडम से बहुत कुछ पता चला है हमें, और मैं चाहूंगी कि हर दम हम मैम से कुछ ना कुछ सीखते ही रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। संध्या जी, हमारी तरफ से भी गुड विशेस। यस, आने वाला थैंक यू। समय आपकी खुशियों भरा हो। यस, जैसे मैं मैम के साथ कनेक्ट हुई हूँ, आप लोगों भी मेरे घर जर्नी में हो साथ में। Yeah. यू घर ऑल में आर, खूब आई किलकारियां एम गूंजे, कनेक्टेड विथ ऑल। घर में खूब किलकारियां गूंजे संध्या जी आपके। सुन पा रही है? थैंक यू। सुन पा रही है मेरी बात? हाँ जी जी, बिल्कुल। ठीक। थैंक यू सो मच सविता जी। हाँ, घर में हाँ। खूब खूब खुशियां आए। बिंदु जी कुछ बोलना हम सब चाहते थैंक हैं? यू। बात बिंदु जी, करेंगे। आर यू ओके टू ओपन योर कैमरा, बिंदु जी? Ma'am, my room is absolutely dark. I have a 1-year-old अच्छा, baby sleeping with me. ओके मैं ओके only ओके little ओके। bit, हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? only bit. Ma'am, you were amazingly beautiful.
आप ऐसा सेशन फिर एक बार करिए प्लीज। जरूर जरूर करूंगी, पर मैं थैंक जब यू। आपकी बार सेशन करूंगी, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट एटलीस्ट वन मोर पर्सन विथ यू। ठीक है मैम, पक्का। तो मैंने इतने लोगों को मोटिवेट किया, आप एटलीस्ट एक जन को तो मोटिवेट कर सकते हैं। जरूर जरूर मैम, बहुत तो ही अच्छा लगा। मैम मैम मैं आपकी बार शाम को करना चाहूंगी, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन हाँ नॉट जी, वेक अप एट 5 o'clock, तो मैं मे बी यस शाम को करूंगी 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे, एक बार डिसाइड व्हाट डू यू थिंक विच टाइम इज अ गुड टाइम टू डू इट इन द इवनिंग? इवनिंग मैम, इवनिंग इज बेस्ट। what time 8 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock? मे बी 7। 7 o'clock. 7 7 o'clock. हाँ Yeah, 7 o'clock is a good time. So maybe I will start something at 7 o'clock, 7 to 8:30. So यस वो Okay, शाम को perfect. आपकी बार करूंगी, because I want to reach out to more people who cannot give time in the morning for whatever reason. So मैं आपकी बार शाम को करूंगी, and थैंक यू I सो will try मच। to add new things also to it. So that's यस it. मैम, थैंक यू सो और मच। कुछ और थैंक कुछ यू। कोई शेयर करने चाहेंगे? Because of the morning thing, I've missed so many sessions. Yeah, I so I always try understand. to wake up in the morning, but या कई लोगों से नहीं होता है, कोई लोग रात में देरी से सोते हैं या जो भी right. Uh-huh. we'll do Because I a have a night club, so that way. मैम एक आखिरी क्वेश्चन था, मतलब सॉरी मैं इतने हाँ. सारे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। But I'm sure that is answering lot of people also when you're asking. हाँ मैम, आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मैं क्या करूँ, इससे क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो मैम मुझसे ये पूछना था, आप आज आपने वो प्रोबायोटिक जो बताया था, उसमें जो आप कह रहे थे मेन पत्ता गोभी है, वो पत्ता गोभी कैबेज क्यों है वो मेन उसमें? कैबेज हैज द हीलिंग पावर, अपने बॉडी को हील करने का पावर है उसमें, गट को हील करने का पावर है। मेरा एक भाई है, अमेरिका रहता है, तो उसको स्टमक अल्सर था और वो बहुत सारी दवाइयां ले रहा था। मैं बोली तुम सिर्फ पत्ता गोभी, ये प्रेबायोटिक लो, पत्ता गोभी का जूस पियो, और मैंने ये डाइट भी बताया, नॉट ओनली दिस, एंड उसकी दवाइयां कम होने लगी। वो ऐसा स्टेज पे आ गया था कि उसका तो शायद डिवोर्स ही हो जाएगा, बिकॉज दवाइयों के कारण शरीर में घैल रहता था, काम नहीं कर पाता था, फुल टाइम सोते रहने का मन करता था। जब आपको सोने का मन कर रहा है तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, अपने काम को टाइम नहीं दे रहे हो, बिकॉज आप तो दवाइयों के इन्फ्लुएंस में हो पूरे टाइम। तो जैसे जैसे उसका गट ठीक हुआ, बिकॉज लिविंग, जैसे जैसे मेडिसिन कम हुई, वैसे वैसे ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर, एंड नाउ इज मच मच बेटर। बहुत अच्छा है, पत्ता गोभी आपके गट को रिपेयर करता है। ओके मैम, क्लियर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू के मंजू जी साथ सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और वाकई में मतलब मैंने भी अपने अंदर काफी चेंज फील किया, और मैं अपने अंदर झांकना शुरू किया। अभी तक तो मैं मतलब मेरा नेचर ऐसा था कि मैं दूसरों का ज्यादा सोचती थी कि उसको ये परेशानी है, इसको ये, उसके लिए ये कर सकते हैं। अपने लिए सोचने का वो ही नहीं था कि कभी अपने लिए भी सोच। लेकिन अब 2 बार आपका सेशन अटेंड करने के बाद ऐसा लगने लगा है कि अब मैं अपने लिए सोच रही हूँ, कुछ कुछ अपने लिए सोचना शुरू कर दिया। अब कोई भी चीज होती है या कोई बात होती है तो मैं पहले अपने लिए सोचने की कोशिश करती हूँ कि मुझे ये कैसे मुझे हेल्प करेगा, या मैं इसमें कैसे फील करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं इसके ऊपर एक स्टोरी बताती हूँ मेरी खुद के लाइफ की। माय सन लिव्स इन हवाई, एंड वो वहाँ एकदम अकेले रहता है। मैंने ही लिव्स अलोन इन द हाउस, ही लिविंग ऑन 14 acres ऑफ लैंड। उसके चारों तरफ ऑर्चर्ड है, संतरे के पेड़ हैं, कम से कम 100 पेड़ होंगे, नींबू के पेड़ हैं 200-300 पेड़, अमरूद के पेड़ हैं। वहाँ जो अमरूद होते हैं वो चेरी, जो बड़ी वाली चेरी होती है ना, उस तरह का देखने में एकदम लगेगा जैसे चेरी, लाल अमरूद होते हैं। पूरा जंगल जैसे भरा हुआ, पाइनएप्पल होता है, केला होता है, एवोकाडो होता है। और हम उससे व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू बात करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हम 2 दिन तक बात नहीं कर पाए, 3 दिन तक बात नहीं कर पाए, तो हमारे को चिंता लगी क्या है। फिर मेरी डॉटर लंदन रहती है, हम लोग दोनों मिलके बैठे कि हम क्या करें, उससे बात ही नहीं हो रहा, मेरे पास किसी का भी कोई कांटेक्ट नहीं था। तो मैंने उसके फेसबुक पे गए, मैं उसके पास उसके फेसबुक के फ्रेंड के साथ जुड़ी। मैं पहले गई हुई हूँ उसके पास, मैं 2-3 लोगों को पहचानती थी, पर नंबर किसी का भी नहीं था। मैं उनको फेसबुक पे फ्रेंड पे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप क्या जाके उससे मिल सकते हो। देवर 60 माइल्स अवे, मैंने 1 घंटा दूर। अगर हमारे कलकत्ते में भी कोई अगर जाके मुझे बोले ना कि आप 1.5 घंटे दूर जाके
किसी को देखना है या किसी से संपर्क करना है तो हम 4 बार सोचेंगे। पर एक लड़की थी, उसका नाम था लिया, है मैंने, तो शी सेड कि हाँ हम जाके देखेंगे। एंड वो 1 घंटा गाड़ी चला के गई। वहां पे जाने के बाद उसने जब देखा तो घर खुला हुआ था और घर पूरा तहस नहस हुआ हुआ था। लिविंग रूम में कोई नहीं आवाज दी उसने, कोई आवाज नहीं आई। बेडरूम में गई, वहां कोई आवाज नहीं आई। फिर वो बाथरूम में गई तो बाथरूम में देखी कि आशीष, मेरे बेटे का नाम है, वो वहां पे गिरा हुआ था। बहुत ज्यादा घबरा गई, उसने एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस बुला के, ये 5वें दिन हुआ मेरी बात, मैंने इसको करते 5 दिन, 5th डे शी कुड रीच हिज हाउस। 5 दिन वो unattended, unconscious, alone at home, lying in the bathroom. He had brain hemorrhage. उसको हॉस्पिटल ले गई, हॉस्पिटल में पता चला कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उसको एयर एम्बुलेंस से उसको बड़े हॉस्पिटल में होनोलुलु ले गए। अब एयर एम्बुलेंस इंडिया में भी हमको मालूम है कि बहुत एक्सपेंसिव है और यूएस जैसी जगह में तो बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। पर ये सब हो रहा था, मैं कुछ नहीं कर रही थी। मुझे सिर्फ 5वें दिन मालूम हुआ कि उसकी ये अवस्था है। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी, मैं बहुत हजारों माइल दूर, और उस समय पीक कोविड टाइम था। ट्रैवल वाज रिस्ट्रिक्टेड, मेरे पास वीजा था पर आई वाज नॉट अलाउड टू ट्रैवल। मैं बहुत इन्फ्लुएंस लगा के, हाथ पांव लगा के 1 हफ्ते बाद यहाँ से निकल सकी, और वहां जाते ही, यूएस जाते ही मुझे फिर उन्होंने क्वारंटीन कर दिया। वहां हॉस्पिटल में जाके वो जब होनोलुलु पहुंचा मेरा बेटा, वहां उसके एक के बाद एक के बाद एक 6-7 ऑपरेशन हुए। एंड आई वाज जस्ट यहाँ पे खाली, यहाँ से मैं खाली उसका मैंने हॉस्पिटल के थ्रू मुझे समय, मैंने संपर्क में थी कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे ध्यान करी, मैंने और कुछ भी नहीं किया। और मैं 1-2 बार अपने आप को, लिटरली आई सॉ माई सेल्फ इन हिज ऑपरेशन थिएटर, कि मैं उसके ऑपरेशन थिएटर में उसके साथ काम कर रही हूँ। एनर्जेटिकली वर्क वाज हैपनिंग। मैंने अपने गुरु को भी बोला, डॉक्टर न्यूटन नोज माई सन वेरी वेल, कि ये ऐसे हो रहा, उन्होंने भी ध्यान किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो, जिन्होंने अपनी गुड विशेस दी। तो आज वो, मैं बताना चाह रही हूँ, आज वो 2 महीने तक तो उसको कोई ज्ञान ही नहीं था कि वो कौन सी जगह है। उसको ये मालूम ही नहीं कि उसके साथ ये हुआ है। वो खाया तो उसको, उसकी मेमोरी लॉस, 100% मेमोरी लॉस, कुछ नहीं। वो खाली मुझे पहचानता था। अगर मैंने उसके लिए कुछ बनाया, उसको ये याद नहीं खाया कि नहीं, वो हॉस्पिटल में वो याद नहीं। वो बोलता था कभी मैं यहाँ हूँ, मैं कभी वहां हूँ, कोई भी, सब मेमोरी स्पेस, सब चीज का कंप्लीट लॉस। पर मैं कभी भी, एक बार भी, कभी भी मैं घबराई नहीं, नॉट इवन 1 मिनट। आई न्यू दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर द बेस्ट। मैं यहाँ तक सोच ली कि अगर इसके साथ कुछ वर्स टू वर्स भी होगा, दैट इज डिजाइंड फॉर हिम। Who am I? I have just given him my womb. मैंने अपना खीर वूम लिया, मैं अपना काम कर रही हूँ। एंड टुडे ही इज अ मिरेकल इन द मेडिकल इंडस्ट्री। उसका केस हिस्ट्री बनाया गया अमेरिका में कि 5 दिन तक अनअटेंडेड, अलोन, ब्रेन हेमरेज में कोई इंसान वापस भी आ सकता है। दे बोलते हैं इस तरह का ब्रेन हेमरेज में कोई घंटा 2 घंटा भी नहीं सरवाइव करता है। 5 days he survived and now today he is better than before. हम 3 महीना उसके साथ थे। हम अल्टीमेटली जब गए वहाँ 3 महीना उसके साथ थे। 3 महीने बाद मेरा बहुत मन किया, मेरे हस्बैंड का भी बहुत मन किया कि उसको वापस हम इंडिया अपने साथ ले आए। बट ही डिड नॉट वांट टू कम बैक, ही वांटेड टू स्टे देयर। मैंने क्या किया, मैं तो उसको अपनी अवस्था पे छोड़ के आई। मैं अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट, मैं जब देखी कि हाँ ठीक है, अब वो अपना ध्यान शायद रख सकता है अपने आप, तो मैं वापस आ गई। टुडे ही इज मच बेटर। जैसे लगता है कि कोई ये इंसिडेंट्स ने उसके अंदर एक स्विच था, उसको ऑन कर दिया। वो पहले से बेटर काम कर रहा है। ही इज जस्ट अनकंडीशनली हैप्पी फॉर नो रीजन, ही इज जस्ट हैप्पी। खाली हंसता है, खाली खुश रहता है, खूब काम कर रहा है, ही इज जस्ट हैप्पी। और उस बात को अब 2 साल हो गए हैं क्योंकि कोविड को। अब वो चाहता है कि मैं आऊं। हर महीना, हर समय बोल रहा है अगले महीने, अगले महीने। अभी बोल रहा है मैं जनवरी फरवरी में आऊंगा। तो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं कुछ, हम कुछ भी नहीं। करने वाला कोई और है, हम खाली माध्यम है। कि कोविड टाइम में इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ, हम चाह के भी हम कुछ नहीं कर पाए। सब कुछ हो रहा था। द फुल ट्रीटमेंट वाज सो एक्सपेंसिव, मैंने करोड़ों करोड़ों रुपए में, पर सब कुछ हो रहा था अपने आप हो। मैंने सिर्फ सरेंडर में उसको देखा, भगवान को बोला कि उनको जो करना है जो करो।
तो अपने आप सब कुछ हो गया एकदम सही ढंग से सब कुछ। सो हम लोग अगर जैसा मंजू जी ने बताया, उनकी बात से मुझे ये इंसिडेंस याद आया, ऐसे लेट मी शेयर विथ यू। सो हम लोग सबके पास अपना परिवार है, पर हम सोचें अगर कि वो पति मेरा या पत्नी मेरी या बच्चे मेरे, सब कुछ एक रिश्ते का नाम है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। हमको अपने साथ जुड़ना है। अब हम जब अपने साथ जुड़ेंगे तो अपने आप अगल बगल सब कुछ अच्छा हो जाए। We just have to connect to our own self, connect to our own energy. हमारी बॉडी की वाइब्रेशन रेज होगी तो अपने आप अगल बगल सब कुछ ठीक होते जाता सही सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब तक आप दूसरों की चिंता करते हो अपने आप से डिस्कनेक्टेड रहते हो। तो जब तक अपने को ठीक नहीं किया तो किसी को नहीं कर सकते। है। करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जल्दी ही आपसे दोबारा मिलें, बस ऐसी कामना है। जरूर जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो रोज हम बोलते थे कल मिलेंगे, आज मेरे मुंह से वो शब्द रुक गए, बट डेफिनेटली सून वी विल मीट। और आप लोग को कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, हाँ महेश जी आप कुछ who's wanting to someone raise their hand? हाँ महेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो खुद ये ही आपने बहुत कुछ कर रहे हैं आप अपने जीवन में भी। आपके साथ जरूर एक बार जुड़ेंगे समझने के लिए। और जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने बताया कि कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ कनेक्शन होगा, आपके साथ बात होगी और आपके सेशन अटेंड करेंगे, बट जैसे आप बताते हैं कि जैसे जैसे हम यूनिवर्स को सरेंडर होते होते जाते हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिलती जाती है। तो बस वही लाइफ है। लाइफ में जितना भी हम अच्छा कर पाए, अच्छे लोगों के साथ जुड़ पाए और हमारे जीवन को जितना भी अच्छा बना पाए और जो भी काम कर पाए वो हमें करना चाहिए। और आपने एक जो यात्रा चालू की थी 21 डेज की, जो आज खत्म होने वाली है, तो आशा रखते हैं सभी लोग इस यात्रा को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। यस आपसे और सभी के जीवन में अच्छे टाइम भी आता है, खराब टाइम भी आता है, सारा टाइम आता है, बट वही जीवन होता है। ये आपके साथ भी इतना बड़ा अनफॉर्चुनेटली हादसा हो गया और आपने अपने आप को स्ट्रांग रखा। इट्स अ गॉड ब्लेसिंग के जो भी हुआ उससे बाहर आए, आशीष जी बाहर आए और अभी भी जर्नी कंटिन्यू है। तो बस इसी तरह मैम जर्नी कंटिन्यू रहे, सब अच्छा अच्छा करते जाए और भगवान के ब्लेसिंग मिलते जाए और जितना हम हमारे हिसाब से हमारी तरफ से कर पाए बस उतना हमें करना चाहिए। तो अच्छा लगा मैम, यही कहना चाहूँगा और आशा रखते हैं इसी तरह से इस यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे। और जितनी भी चीज़ें हम बताते हैं ना कि विदाउट ईगो, विदाउट पावर और अपने मन को और अपने शरीर को अच्छी तरीके रख के कर पाए, तो बस वही एक विशेष है। और थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू you. सो मच। कंटिन्यू कीप मेडिटेटिंग। यस, थैंक यू निधि जी। आज बोलिए कि कल क्या करेंगे अभी। कल सुबह उठ के निधि रोज जी जैसे हम परफेक्ट। ध्यान करते आए हैं वैसे हम ध्यान करते रहेंगे रोज। और आप ब्रेथ वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, रोज अपनी सांसों को देखिए, अपनी थॉट अच्छी रखिए कि मुझे भी बस यूनिवर्स के लिए करना है। हमारा काम ही है, यूनिवर्स में हम आए ही हैं दूसरों की सेवा के लिए। फिर हम शायद भूल जाते हैं, तो अपने आप को खाली याद दिलाना है, आई एम हियर टू हेल्प ह्यूमैनिटी ग्रो। मैम जैसा बनने की कोशिश करें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम ये सो आज मच। का मेडिटेशन का आप रिकॉर्डिंग हाँ मैं शेयर करूंगी रिकॉर्डिंग। हाँ, तो फिर हम Thank कंटिन्यू you करेंगे। so much. I will be with you again soon. Thank you so much for being a part of my journey, for my evolution. मेरा भी थैंक यू, ग्रोथ होना मैं थैंक आपके यू, साथ जुड़ती हूँ। थैंक यू जी, बहुत अच्छा, थैंक थैंक यू।